Okay, can you hear me? Yes, sir. Above. Okay, actually I got some problem with my connection. Okay. Okay, so Katie, so she got the treatments, and this product was the first products of one of the first products of genetic engineering. So after that, this human growth hormone was initially produced in E. coli, और उसमें किया गया कि जिस human growth hormone को fuse किया गया with regulatory elements of the DNA of bacteria, और उसको फिर transform किया E. coli को. So after that, and this was in 1985, and you can think in 1985 में क्या facilities होंगी, and at that time this human growth hormone was produced in E. coli, and this became the second pharmaceutical product of genetic engineering to be approved for use in humans. So actually प्रोटीन्स को इंजीनियर करना इजी है, लेकिन उसको अप्रूव करना फॉर ह्यूमन यूज इज टू मच डिफिकल्ट फॉर, एंड दैट वाज बाय यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एफडीए ने कर दिया था इसको अप्रूव in 1985, and this was the second pharmaceutical product. First pharmaceutical product कौन सा है? Hello? Insulin, sir. Insulin. Insulin, yes, exactly. Insulin was the first such product, and that was approved in 1982, and this was in 1985. So after that, so there are some basic techniques that can be used to identify, amplify, and clone genes. So genes को identify करने के लिए, amplify करने के लिए और clone करने के लिए कुछ techniques हैं. We will go to study them. और first उसमें से क्या है? In vivo amplification. लाइक किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए को एम्पलीफाई करना, मल्टीप्लाई करना लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एंड दैट इज द जीन क्लोनिंग कॉन्सेप्ट. एंड टू गो फॉर बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में किसी जीन को क्लोन करें और उसको एम्पलीफाई करें. एंड द सेकंड वन इज इन विट्रो एम्पलीफिकेशन, एंड दैट इज द strategy of thermocycler, the strategy of PCR, polymerase chain reaction. लेकिन polymerase chain reaction को हम जब thermocycler में करते हैं, अब हम PCR मशीन तो आप सबने देखा हुआ है ना? जी सर. हाँ, PCR मशीन जो है that is nothing but a thermocycler. उसने क्या करना है? टेम्परेचर चेंज करने हैं बस. डीनेचरेशन टेम्परेचर, ठीक है, उसके बाद अनीलिंग टेम्परेचर, और उसके बाद एम्पलीफिकेशन है ना. सो 3 टेम्परेचर उसने चेंज करने हैं बस. एक्सटेंशन है ना, तो ये 3 टेम्परेचर्स उसने चेंज करने हैं. दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज थर्मोसाइक्लर. बाकी काम पॉलीमरेसिस का होता है और रिएजेंट्स का होता है कि उन्होंने उसके पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवाने हैं. सो two basic techniques हो गए, like to amplify some genes or DNA. So the first one is in vivo amplification, and the second one is in vitro. So in vivo amplification, if you need that, so what steps actually you need, and what step we need? And the first one is construction of the DNA को construct करना, recombinant DNA को construct करना. The second one is transformation. So construction of DNA is to produce recombinant DNA molecules, for example, a human gene inserted into a plasmid. So we need to have a DNA, we gonna insert that a DNA into a plasmid, and that's what we mean by construction. And by transformation, what we mean, so the recombinant plasmid, once we produce a recombinant plasmid, so we need to introduce that recombinant plasmid into E. coli cells, where it replicates to produce many copies of the recombinant DNA. So अब ये देखें कि हमने यहाँ पे प्लाज्मिड को कंस्ट्रक्ट करना है, मींस के डीएनए को लेना है और उसके साथ उसको फ्यूज करना है प्लाज्मिड में. सो हाउ वी कैन डू दैट? ये पूरी एक स्ट्रेटजी होती है कि इसको किस तरह हम क्लोन कर सकें विद इन अ प्लाज्मिड. प्लाज्मिड को जब एक दफा इसमें डीएनए इंटीग्रेट हो जाए, फिर हमें चाहिए कि उस
पूरे जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड की तो समझ आती है ना कि है क्या? Yes, sir. Yes, sir, आती। जी सर। प्लाज्मिड हैविंग जीन ऑफ इंटरेस्ट, कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा कोई भी है, और एक मिनट में इसको अगर यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ, तो अगर ये मेरा प्लाज्मिड है और इसमें मैंने क्लोन करना है जीन ऑफ इंटरेस्ट, मींस आई क्लोन इंसुलिन हियर, इसमें मैंने इंसुलिन क्लोन कर दिया है। सो अब दिस इज रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। अब ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड मुझे सेल चाहिए होंगे बैक्टीरिया के कि उसमें ये मल्टीप्लाई कर सकें, ये पूरा प्लाज्मिड उसमें मल्टीप्लाई कर सके। ये प्लाज्मिड को मल्टीप्लाई करने के लिए सेल चाहिए, कोई सिस्टम चाहिए, बायोलॉजिकल सिस्टम चाहिए। सो फॉर दैट, सो ओके, सो बायोलॉजिकल सर, जी जी ये जीन क्लोनिंग के लिए सर जब हम लोग प्लाज्मिड किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्लेस करते हैं तो सर वो इकोलाई के अलावा कोई और नहीं हो सकता? हो सकते हैं, इवन यीस्ट में भी लोग करते होते हैं। यस सर, तो यीस्ट के अंदर अगर हम लोगों ने कोई ऐसा हार्मोन है जो उसके अंदर मतलब रेप्लिकेट उसमें किया गया हो? करते होते हैं, यीस्ट बहुत कॉमन है फॉर प्रोटीन प्रोडक्शन, बहुत कॉमन है। बैक्टीरिया इजी टू ओके सर। यूज है ना, लेकिन अगर आपने हायर ऑर्गेनिज्म के लिए वो करना है, लोग प्रेफर करते हैं यीस्ट में एक्सप्रेस करवाना। ओके सर। इट्स टू मच कॉमन। सो अब सर कॉन्सेप्चुअल जी जी सर यीस्ट के अंदर भी प्लाज्मिड होता है? यीस्ट के अंदर प्लाज्मिड होते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, उस सिस्टम में प्लाज्मिड तो नहीं, उस सिस्टम में एक्सप्रेस करवाने के लिए डीएनए उसमें एक्सप्रेस करवाए जा सकते हैं यीस्ट में। अच्छा ठीक है सर। ठीक है वैसे वायरसेस इस्तेमाल करते हैं, जी। वायरसेस इस्तेमाल करते हैं सर, टी फेजिस आई थिंक। फेजिस को भी यूज किया जा सकता है। कॉस्मिड्स भी हो, सिर्फ प्लाज्मिड नहीं है, कॉस्मिड्स भी हैं, बैक्स हैं, येक्स हैं, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स भी यूज हो सकते हैं जो यीस्ट में होते हैं। सिस्टम बहुत सारे हमने पढ़ने हैं सारे, लेकिन बेसिकली मेरे अब यहाँ पे इस स्टेप पे कहना का मकसद ये है कि हमने क्या करना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, ठीक है, और उसके बाद उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करना है विद इन एन एक्सप्रेशन सिस्टम। हमारे पास यहाँ पे जो है वो इकोलाई है, इकोलाई में भी फिर डिफरेंट सिस्टम है, कुछ जो है ना वो क्लोनिंग सिस्टम है, कुछ जो है ना एक्सप्रेशन सिस्टम है। क्लोनिंग सिस्टम में सिर्फ क्लोन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसको प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं होते। कुछ सिस्टम्स हैं वो हम प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए यूज करेंगे, आगे जाके हमने सारा कुछ यही डिस्कस करना है, ठीक है। इन वीवो ओके सर। या इन विट्रो एप्लीकेशन दोनों की स्पीड में डिफरेंस होगा? इन विट्रो और इन वीवो में स्पीड ऑफ रेप्लिकेशन एम्प्लीफिकेशन में डिफरेंस होगा सर? हाँ, ये असल में ये पूरा, ये तो इन विट्रो तो कॉमन सेंस है ना कि दिस शुड बी फास्ट इनफ, लेकिन हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं। आप पीसीआर में 35 केबी से बड़ा प्रोडक्ट आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। लिमिटेशन फिर आपको इन विवो में वो लिमिटेशन नहीं है, आप पूरा क्रोमोसोम भी मल्टीप्लाई, फॉर इंस्टेंस आपने इन विट्रो कोई क्रोमोसोम बनाया हुआ है, तो इन विवो में आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरे क्रोमोसोम के, एंड दैट कैन नॉट बी हैपनिंग इन द पीसीआर इन विट्रो। तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स दोनों के हैं, एंड यू आर राइट कि इन विट्रो जो है दैट विल बी फास्ट इनफ। इस वजह से लोग प्रेफर करते हैं कि इन विट्रो हो, लेकिन आप हर बंदा जो है वो जब एम्प्लीफिकेशन कर लेता है फॉर लॉन्ग स्टोरेज, फॉर फ्यूचर, उसको क्लोन करते हैं, इन विवो में जाते हैं, और उसके अपने फिर बेनिफिट्स हैं। वी विल डिस्कस दोस एज वेल, ओके सर। ठीक है। शुड वी गो फर्दर? यस सर। ओके, एंड आफ्टर दैट द इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन में क्या है, एक और बात भी समझ लें यहाँ